Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor in Government Engineering College, Bilaspur, Chhattisgarh. I have done my Masters from NIT Delhi in Electronics and Communication Engineering, and I have also qualified ISRO exam, State Public Service Commission, GATE exam, and even published in 2 international Science Citation Index journal and 4 national journals. And I have a 3+ years of teaching experience, and this in this video lecture series I am dealing with signals and system subject, and we have already completed 31 lecture, and this will be the 32nd lecture. We are in the module 5, and in module 5 today, from in module 5 this will be the lecture first, in which I will be dealing with Laplace transform and Z transform. So till now we have already completed the representation of signals, means classification of signals and systems, and then we have studied LTI systems. What are LTI systems? How we can get output response of a LTI system in continuous and discrete time system. In the third module we have studied the Fourier series for the periodic signals. We have studied so many so many properties of Fourier series, and then in the last module we have studied Fourier transform for a periodic signal, and we have seen already all 7 lectures already have completed, and in that we have seen Fourier transform for standard signals, what are Fourier transform for some properties of Fourier transform and all. So today we'll start with Laplace transform and Z transform. These are all more generalized transform than Fourier transform. Actually Fourier transform is a particular case or condition of a Laplace transform. So today from today we'll study the more generalized transform, that is Laplace transform. So let's get started. So see, actually why we are moving towards Laplace transform and what was the problem with Fourier transform. Actually that from first that we'll see, and then we'll move on. Actually see, in Fourier transform what we used to do, see, I will tell you Fourier transform. In Fourier transform what we used to do is f of t, Fourier transform will be f of omega. This was the tool which we were using to transform time domain to frequency domain. This was the tool. But its formula, if you consider its mathematical formula, what we will see, minus infinite to infinite f of t e to the power minus j omega t dt. This was the formula for calculating Fourier transform. Okay. So you have seen that many of the signals Fourier transform can be calculated by this formula. By this formula easily many signals Fourier transform can be calculated, like that of if I tell you e to the power minus at, e to the power minus at ut. You directly you can put e to the minus at ut, and directly you can calculate the Fourier transform, which will come around 1 by a plus j omega. See, these if you remember last module, in one of the lecture I have told you, these are directly Fourier transformable, means these signals are we can calculate Fourier transform directly. We do not do indirect techniques or another techniques. Direct technique, from direct technique we can calculate Fourier transform. But as you have remembered, some of the signals like that of, let r of t is there, you know, like that of e to the power at is there. Okay, this type of signal is not absolutely integrable. So you have remembered that these signals cannot, Fourier transform cannot be calculated. Okay, इन सिग्नल्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कैलकुलेट कर सकते किसी भी टेक्निक से. कुछ कुछ सिग्नल्स हैं, जैसे कि आप मान के चलिए यू टी है ना, दिस इज यू टी. दिस इज ऑल्सो एक्चुअली नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है ना, बट ये वैल्यू कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, ये ऐसा इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो ये दीज ऑल सिग्नल्स का हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टेक्निक से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. आपको अगर याद होगा तो u ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म वाज पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1 by j omega. This was indirect technique from where we have calculated Fourier transform. But these type of signals cannot be
their Fourier transform cannot be calculated either by direct technique or indirect technique. तो अब क्या करें, इन सिग्नल्स का क्या करें, ठीक है। अगर हम इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन कैलकुलेट करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनको वी नीड टू एनालाइज दिस सिग्नल, देन व्हाट वी कैन डू, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर दिस टाइप ऑफ सिग्नल। तो हम लोगों को दिमाग आया, हम लोगों को नहीं, साइंटिस्ट को दिमाग आया, एंड देन ही सजेस्टेड दैट कि अगर हम लेट सपोज कि दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज देयर, this type of signal, let's suppose e to the power 2t is there, okay, this Fourier transform cannot be calculated। अगर इस सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, लेट सपोज इस सिग्नल को हम लोग किसी इफ यू मल्टीप्लाई विद अ डिकेइंग सिग्नल, किसी डिकेइंग सिग्नल के साथ लेट सपोज e to the power -4 ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो होगा क्या कि आपका this let's suppose this was your f of t, है ना, this was your f of t and now what you have done multiplication with e to the power -4t। अब आपका होगा जैसे f of t क्या है, e to the power 2t है ना, e to the power 2t है, और ये हो गया e to the power -4t। तो अब आप बताइए कितना आंसर है, e to the power -2t which is a decaying signal। ये एक decaying signal है, which is a decaying signal। So Fourier transform can be calculated for this signal or not? Obviously this is a decaying signal, so Fourier transform can be easily calculated for this type of signal। So what we have suggested that okay, for this type of decaying signal which are whose value is tending to 0 when time is tending to infinite, so this signal can be easily calculated, Fourier transform can be easily calculated, है ना। But those signal whose Fourier transform cannot be calculated either by direct or indirect technique, what we will do, we will multiply a decaying signal with that signal and then we will see that, देखिए ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया, मैं आपको एक वो बताता हूँ, जैसे लेट सपोज कि ये आपका एक सिग्नल है ना, दिस इज योर सिग्नल, लेट सपोज दिस इज e to the power 80, है ना, एंड व्हाट यू आर डूइंग नाउ, यू आर मल्टीप्लाइंग दिस सिग्नल विद अ डिकेइंग सिग्नल, ठीक है। एक हम डिकेइंग सिग्नल ले लेते हैं, ये दिस इज डिकेइंग सिग्नल, लेट सपोज दिस इज e to the power minus sigma t, ओके, e to the power minus sigma t। तो आप क्या करिए, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे e to the power at into e to the power minus sigma t, तो आपको क्या मिलेगा, e to the power a minus sigma t, ये मिलेगा। अब आप देखिए ये सिग्नल कब, व्हेन दिस सिग्नल विल बी एब्सोल्युटली डिकेइंग, कब होगा, जब आपका a माइनस सिग्मा इज लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होगा तभी तो ये ऑब्वियसली ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव e टू द पावर माइनस नेगेटिव t जो होगा दैट विल बी डिकेइंग। तो a माइनस सिग्मा इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा a इज लेस देन सिग्मा। तो देखिए इसमें आपका ये आ गया कि सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन a, ये आपका कंडीशन आ गया। इसका मतलब ये है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि a signal which is exponentially rising, whose Fourier transform cannot be calculated by direct or indirect technique, what we have done, to analyze it in frequency domain, we have multiplied a decaying signal, let's suppose e to the power minus sigma t, we have multiplied with that signal। तो क्या ये अभी ये पूरा सिग्नल जो e to the power minus sigma t पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो नहीं होगा। फॉर सर्टेन पर्टिकुलर रीजन ऑफ सिग्मा, देखिए सिग्मा के पर्टिकुलर रीजन पे ही ये वैल्यू, अगर जब तक सिग्मा इज ग्रेटर देन ए है, सिग्मा इज ग्रेटर देन ए, तभी तक ये जो टोटल आउटकम आएगा, टोटल आउटकम ऑफ दिस सिग्नल विल बी डिकेइंग। अगर सिग्मा इज लेस देन ए और इक्वल टू ए हो जाएगा, या लेस देन ए हो जाएगा, सिग्मा लेस देन ए हो जाएगा, तो ये e to the power a minus sigma will be a exponentially rising signal that ultimately फिर Fourier transform we cannot calculate। So for calculating Fourier transform, है ना, for calculating Fourier transform या फिर इसको एनालाइज फ्रीक्वेंसी डोमेन में, for analyzing it, what we have done, we have just multiplied a decaying signal with our signal, and we need to check कि कौन से, फॉर विच वैल्यू ऑफ सिग्मा दिस वैल्यू कैन बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, या एब्सोल्युटली ये वैल्यू फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है ना। तो ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू ऐसा वैल्यू है, सिग्मा इज ग्रेटर देन ए, दैट फॉर सिग्मा इज ग्रेटर देन ए ओनली, दिस those value of sigma greater than a only
अगर अपन करें तो ही ये सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर आप कोई सिग्नल को एफ ऑफ टी को, कोई भी आपका सिग्नल है एफ ऑफ टी है ना, वॉट एवर योर सिग्नल में भी एफ ऑफ टी, आप यू आर मल्टीप्लाइंग विथ ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, आप हर सिग्नल को ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो सिग्मा की वैल्यू है किस फॉर विच वैल्यू ऑफ सिग्मा दिस दिस कंप्लीट वैल्यू विल बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये आप चाह रहे हैं, है ना। तो अब हम फाइनल आउटपुट पे आते हैं। देखिए हम निकालना क्या चाह रहे थे, एफ ऑफ ओमेगा निकालना चाह रहे थे कि भैया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो भी आपका एफ टी दिया हुआ है उसको ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी से इंटीग्रेट कर दें। विल व्हाट विल डू, एफ ऑफ ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म वी नीड टू कैलकुलेट, वी आर जस्ट डूइंग एफ ऑफ टी इनटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, दिस वाज फोरियर ट्रांसफॉर्म। बट व्हेन एवर योर एफ ऑफ टी, ठीक है, व्हेन एवर your whenever f of t is not absolutely integrable, है ना, जब भी ये not absolutely integrable होता है तो क्या किया जाता है, देन, है ना, देन हम इसमें एक चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो अब हम पूरा कंप्लीट लेंगे कि भैया आपका एफ ऑफ टी है ना इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, है ना, इसका हम अब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब आपका सिग्नल सिर्फ एफ ऑफ टी नहीं है, योर सिग्नल इज नाउ नॉट ओनली एफ ऑफ टी, नाउ योर सिग्नल हैज बिकम एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी। दिस यू शुड रिमेंबर, सी दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली वेयर from where we are going from Fourier transform to Laplace transform actually. So you need to understand this concept. So f of t into e to the power minus sigma t is there, okay, and for taking Fourier transform of this signal we'll go with e to the power minus j omega t dt, same, okay. This now you can see minus infinite to infinite is there, f of t will be there, and e to the power minus sigma plus j omega can be done and this will be written. So देखिए आपका f ऑफ t इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी है, लेट, है ना, ये जो सिग्मा प्लस जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, लेट s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना। s क्या है, s इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुज वैल्यू इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f ऑफ t e टू द पावर माइनस s ऑफ t dt। दिस इज एक्चुअली, और ये टर्म आ जाएगा अब हमारे पहले तो क्या होता था सिर्फ ओमेगा के टर्म्स में आता था, अब हमारा सिग्मा भी है ओमेगा भी है, तो हमको यहाँ पे टोटल s लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो f ऑफ ओमेगा आता था वो अब f ऑफ s के टर्म में आएगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसको लिख लेता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन for Laplace transform. This is the most important thing. तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज, अगर आप देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, इसी को e to the, बेसिकली ये है, इसी को तो अपन e to the minus s लिखे, दिस वैल्यू वी हैव रिटन e to the minus st। सो अगर आप देखें बेसिकली ये तो अभी आपका आप इसको देख लीजिए या फिर इस इक्वेशन को देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज अ व्हाट, दिस इज एफ ऑफ ओमेगा ही है ना, एफ ऑफ ओमेगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। दिस एक्सप्रेशन टेल्स अस दैट वी आर टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी टू द पावर माइनस सिग्मा टी। यहाँ पे क्या हो रहा था, वी वर टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ओनली एफ टी, नाउ वी आर टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी e टू द पावर माइनस सिग्मा टी। अब ये पूरा एक कंप्लीट सिग्नल हो चुका है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम ये भी बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी e टू द पावर माइनस सिग्मा टी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। अगर हम f ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमको f ऑफ ओमेगा मिलता है, लेकिन अगर हम f ऑफ t इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलता है। समझ पा रहे हैं आप, दोनों में बस इतना ही अंतर है। ये इस पूरे जितना मैं बताया उसका ये सार है। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आता है तो f ऑफ t फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा, f ऑफ t e टू द पावर माइनस सिग्मा t का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा f ऑफ s, है ना। तो
you must be thinking that, sir, f of t was not absolutely integrable, so we were not able to calculate Fourier transform. Then what we have done? We have done multiplication with e to the power minus sigma t. Decaying signal is there. Now we are able to calculate Fourier transform, and then we will call it as Laplace transform. But is there any value for which only we will calculate Laplace transform, or this value will be valid, or there will be region of convergence? Okay, so देखिए, we have actually, I have told you with the example e to the power e to the power 2t and e to the power minus 4t. So हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सिग्नल कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे e to the power 80 और e to the power minus sigma t था, तो हम देख पा रहे थे कि whenever sigma is greater than a, then only this signal will be absolutely इंटीग्रेबल. अदरवाइज क्या होगा कि सिग्मा अगर लेस देन ए हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन करके भी वो सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा नहीं, है ना. तो हमारा कोई जो हम फ्रॉम विच सेंस वी वर ट्राइंग, दैट सेंस विल नॉट बी फुलफिल्ड. सो हम एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा के लिए ही हम ये सब काम कर पाएंगे, है ना. सो फॉर दैट particular value of sigma, for that particular value of sigma is called as region of convergence. मतलब आप ये जो sigma है इसको आप ये बोल सकते हैं कि sigma is called as damping factor. This is called as damping factor. Damping मतलब you can understand, damping मतलब कोई चीज को कम कर रहा है, डैम्प कर रहा है, it is, है ना. It is a damping factor. F of t was increasing, so it was damping it, so it will be called as damping factor. And see, now this signal f of t e to the power minus sigma t, definitely not definitely, but it will be converging. It will be going, its value will be going to tending to zero for some value of time tending to infinite. So देखिए, एफ ऑफ टी तो नहीं हो रहा था, हम उस सिग्नल की बात कर रहे हैं कि एफ ऑफ टी बिल्कुल भी इंटीग्रेबल हो ही नहीं रहा था, वो तो बढ़ते जा रहा था. तो हमने क्या किया, एफ ऑफ टी को e टू द पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. तो नाउ एफ ऑफ टी e टू द पावर माइनस सिग्मा टी विल बी कन्वर्जिंग, ठीक है. आपको मैं यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख देता हूँ कि एफ ऑफ टी वॉज नॉट कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज नहीं हो रहा था. तो हमने क्या किया, एफ ऑफ टी को e टू पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस विल बी कन्वर्जिंग, लेकिन ये सारे वैल्यू ऑफ सिग्मा पे कन्वर्ज नहीं होगा, ये चीज को याद रखिएगा. एफ ऑफ टी e टू पावर माइनस सिग्मा टी विल बी कन्वर्जिंग फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है. फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा पे ही ये एफ ऑफ टी टू माइनस सिग्मा टी कन्वर्ज होगा. एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट पर्टिकुलर वैल्यू, या इसको अपन बोल देते हैं रेंज ऑफ सिग्मा, ठीक है. रेंज ऑफ सिग्मा इज कॉल्ड एज ROC. देखिए, ये this all concept were very important. That's why I am so much focusing on this. Slowly I am telling you understand, because these are many confusing type of questions which are asked in interview. So अगर आपको कोई बोलता है what is ROC, what is actually why we are doing it, तो आपको ये concept clear होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या वैल्यू पे ये कन्वर्ज हो रहा है. तो that is called ROC. तो मेरे ख्याल से आपको अब इस चीज को समझ में आया होगा, ठीक है. एक्चुअली Z ट्रांसफॉर्म जो है बिल्कुल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही एक हिस्सा है. बस ये जो व्हाट वी आर डूइंग इन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल, दैट इज इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. मतलब जो भी हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में कर रहे हैं, सेम टू सेम उसका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो होता है उसको Z ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. तो कायदे से हम यहाँ पैरेलल चला सकते थे, बट चलो मैं एक चैप्टर पूरा पहले लाप्लास पढ़ाते जाता हूँ और उसके बाद फिर Z ट्रांसफॉर्म में इकट्ठा कूदेंगे अपन, ठीक है. लेकिन होगा यही, बिल्कुल होगा यही. अगर आप देखेंगे तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन होगा यही, ठीक है. बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है Z ट्रांसफॉर्म को भी. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपको मैं पूरी कहानी को मतलब ऐसे बता देता हूँ. सबसे पहला आपको ये समझना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल, ठीक है, इज डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल. लेट्स सपोज एफ ऑफ टी है सिग्नल आपका, एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज f of s
ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को दिखाने का तरीका है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर अ सिग्नल एफ ऑफ टी। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम कोई भी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है ना। जहाँ पे यहाँ एस की वैल्यू क्या है, व्हाट इज एस? एस इज नथिंग बट सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अगर आपको डेरिवेशन याद होगा जो हम लोगों ने अभी किया है, उसमें एस सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। एस एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो है ही क्योंकि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एस इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ओके ओके। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस क्या है। सेकंड इसमें कंक्लूजन ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है क्या बेसिकली। एफ ऑफ एस इज नथिंग बट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी। एफ टी ई टू पावर माइनस सिग्मा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे भी टर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस को माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, तो एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, और फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इस इक्वेशन से भी आप देखा जा सकता है जो हम लोगों ने अभी देखा। दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस, ओके। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था। आई हैव टोल्ड यू दैट Laplace transform is more generalized transform. Laplace and Z transform are more generalized transform than Fourier transform. तो how it is possible? देखिए आप दिस इक्वेशन को आप देखिए, ये वाला इक्वेशन है, दिस इक्वेशन अगर आप इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू 0 रख देते हैं, फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 0, सिग्मा की वैल्यू 0 रख देंगे तो एफ ऑफ एस क्या आएगा, एफ ऑफ एस आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। एफ ऑफ टी विल बी देयर ई टू पावर माइनस सिग्मा टी खत्म हो जाएगा, ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। क्या ये जो है, और एस बेसिकली होता क्या है, एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो यहाँ पे सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एफ ऑफ जे ओमेगा लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जे ओमेगा। तो सी आपको ये ऐसा नहीं लग रहा देख के कि ये बिल्कुल फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसा है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप ये बोल सकते हैं कि लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर व्हेन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल इज टेकन, ठीक है, विथ या फिर इसको ऐसा ना लिख के अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म ना लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं व्हेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, व्हेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल इज टेकन विथ सिग्मा इज इक्वल टू 0 वैल्यू, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, देखिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था, दिस वाज फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट वी हैव डन फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 0 वैल्यू अगर हमने देखा तो ये बिल्कुल फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया। तो व्हेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल इज टेकन विद सिग्मा इज इक्वल टू 0 वैल्यू, वी गेट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो आप ये बोल सकते हैं क्या कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर सो मेनी वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा के एक रेंज के वैल्यू पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। Laplace transform exists for range of sigma value, but for a particular sigma is equal to 0 value, Laplace transform becomes Fourier transform. So you can say that Fourier transform is a particular case of more general transform that is Laplace transform. ये this is the conclusion which I wanted to tell you, क्योंकि this question is asked in many of the interviews that Laplace transform or Fourier transform which is more general transform. So you should able to tell कि sir Laplace transform is applicable for range of sigma value, but for a particular sigma is equal to 0 value only, Laplace transform becomes Fourier transform. So Fourier transform is a particular case of more general transform that is called Laplace transform. This actually you need to understand. Okay, now we need to see that
व्हाट इज द एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कब लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, मतलब कब हम लाप्लास व्हेन वी कैन कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर अ सिग्नल। तो एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज सेम एज दैट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका बिल्कुल फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर आपको याद होगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम बोलते थे कि भैया जैसे फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, इफ आई विल राइट फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म विल राइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी होता था, तो हम बोलते थे कि भैया आपके जो एफ ऑफ टी है ना, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ एफ ऑफ टी, ये जो आपका रहता है मॉड ऑफ एफ ऑफ टी, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि इसको हम लिख देते हैं, इसको मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, mod of f of t dt should be less than infinite। ये फोरियर, this was the existence condition for Fourier transform if you have remembered। अगर यही चीज मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बोलूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही एक वो है, मतलब बड़ा वर्जन है। तो f of t e टू द पावर माइनस सिग्मा टी है ना, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी है, इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड ले है ना, और ये वैल्यू ना लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए था। तो एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज दिस वन, दैट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी मॉड वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू लेस देन इनफाइनाइट। ये दिस शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शुड बी, दिस वैल्यू शुड बी एब्सोल्युटली integrable, this value should be absolutely integrable, then only you can calculate Laplace transform। अगर ये इंटीग्रेबल ही नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या है हम e टू द पावर माइनस सिग्मा टी डाले हैं, f of t was there for decaying it, for converging it we have multiplied e to the power minus sigma t, and now अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद अगर कन्वर्ज ही नहीं होंगे, एब्सोल्यूट इंटीग्रेट ही नहीं होंगे, तो हम ये क्यों हम कर ही नहीं सकते ना, फिर तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी नहीं निकाल पा रहे थे, वी वर नॉट एबल टू कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म आल्सो, सो वी विल नॉट एबल टू कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म आल्सो, सिंपल सी बात है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ निकाला जाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ निकाला जाता है, ROC की वैल्यू कहाँ निकाली जाती है, फॉर दोज वैल्यू ऑफ सिग्मा। ठीक है, वो उसी वैल्यू ऑफ सिग्मा पे निकाला जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब ये पूरा सिग्नल उसी वैल्यू पे कन्वर्ज होगा फॉर दोज वैल्यू ऑफ सिग्मा, सो दैट ये जो f ऑफ t e टू द पावर माइनस सिग्मा t becomes absolutely इंटीग्रेबल। जब आपका सिग्मा की उसी वैल्यू पे हम कन्वर्ज होगा ये f ऑफ t टू द माइनस सिग्मा t, उस वैल्यू को हम बोलेंगे ROC। तो ROC का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, उस रीजन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस का जिस वैल्यू ऑफ सिग्मा पे ये f ऑफ t टू माइनस सिग्मा t एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बन जाए। अब आपको पता है कि x की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना, तो आप सिर्फ सिग्मा सिग्मा बोल रहे हैं बार बार कि वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ROC को हम या तो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा इज ग्रेटर देन और समथिंग जो भी वैल्यू उसका होगा, और ROC को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ s के नाम से भी, क्योंकि s का रियल पार्ट क्या है, सिग्मा है। तो आप या तो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लीजिए ROC को, यू कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम सिग्मा ROC वैल्यू, और यू कैन राइट रियल पार्ट ऑफ s। तो आप दो, यू कैन राइट आइदर वे, आप दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को लिख सकते हैं, है ना। So let's calculate Laplace transform for some standard signal, then you'll able to understand how we can do it। Okay, so we'll solve some of the questions like that of, see, if you have been given a signal f of t is nothing but delta t, ठीक है, this is your impulse signal, okay, were you able to calculate this Fourier transform? Yes,
we were able to calculate its Fourier transform. So obviously जिस सिग्नल का Fourier transform निकल सकता है उस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो निकल ही सकता है, क्योंकि Fourier transform इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं क्या होता है। पहले तो आप कंडीशन चेक कर लीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप वाज एक्चुअली चेकिंग द कंडीशन कि अभी मेरे को नहीं मालूम कि Fourier ट्रांसफॉर्म निकल सकता है कि नहीं, तो मेरे को तो पहले एक्सिस्टेंस कंडीशन चेक करना होगा। तो फर्स्ट विल चेक इट्स एग्जिस्टेंस कंडीशन। तो एग्जिस्टेंस कंडीशन ये कहता है कि आपका जो भी सिग्नल है डेल्टा टी, उसको आप क्या करिए e टू द पावर माइनस सिग्मा टी, है ना, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी करके आप इसका मैग्नीट्यूड को आप देखिए कि क्या ये इनफाइनाइट से कम है कि नहीं। इज इट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन इज लेस देन इनफाइनाइट और नॉट। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ये वैल्यू आएगा e टू द माइनस e टू द पावर 0 हो जाएगा, ये डेल्टा टी आ जाएगा dt whose value is equal to 1 which is less than infinite. तो this is the existence condition of Fourier Laplace transform। ये है, ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसका एग्जिस्टेंस कंडीशन निकाला जा सकता है। तो निकालते हैं, चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम करते क्या हैं, हम e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट करते हैं, डेल्टा टी करते हैं, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी लेते हैं, है ना, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी लेते हैं, या फिर आप इसको सीधा e टू द पावर माइनस एस टी ले लीजिए, सिंपल सा बात, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं डी टी। अब इसमें आ जाएगा ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, जो कि वैल्यू आएगी डी टी इज इक्वल टू 1। तो चाहे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें डेल्टा टी का, ओके, इसका डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है 1, ठीक है, और डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी होता है 1। ये चीज को याद रखिएगा, है ना, ये क्लियर है आपको, आसान है। पहले फर्स्ट स्टेप इज चेकिंग द एग्जिस्टेंस कंडीशन, अगर एग्जिस्टेंस कंडीशन है तो आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, वेरी इजी। लेकिन ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, इसलिए इसका ये वैल्यू को आप याद रखिएगा, है ना, ये वैल्यूज को याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन विल डू, हम निकालते हैं लेट सपोज u ऑफ t का, f ऑफ t आपको दे रहा है u ऑफ t का, इसका आपको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस कंडीशन चेक करते हैं, चलिए करके देखते हैं। हम करते हैं e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, u ऑफ t में हम मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर माइनस सिग्मा t, है ना, और इसका अगर हम देखें कि ये क्या ऐसा होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर, इसको जीरो से इनफाइनाइट कर लीजिए, e टू द पावर माइनस सिग्मा t कर लीजिए, dt कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे e टू द पावर माइनस सिग्मा t है ना, नीचे माइनस सिग्मा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट ये वैल्यू। अभी आप देख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे देख के चलिए, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी को 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो e टू द पावर माइनस सिग्मा टी कैसा कैसा हो सकता है। अगर सिग्मा e टू द पावर माइनस सिग्मा टी के अलग अलग हम वेरिएशन को देख रहे हैं, अगर सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो ये वैल्यू कैसा होगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी की सिग्मा ऐसा गिरेगा। अगर सिग्मा की वैल्यू इक्वल टू 0 हुई तो ये कैसा वैल्यू होगा, ये कांस्टेंट होगा, और सिग्मा इज लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसे बढ़ेगा। अब आप बताइए 0 से इनफाइनाइट इफ वी वांट टू इंटीग्रेट विच सिग्नल इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, तो ऑब्वियसली ये ही सिग्नल ऐसा है जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, ये सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं हो पा रहा है ना, अगर अपन इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट, दीज सिग्नल्स आर नॉट। सो आपका कंडीशन क्या होगा कि ये वाला जो ये f ऑफ टी यू टी है ना, f ऑफ टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम तभी निकाल सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैन ओनली बी, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, कैन ओनली बी कैलकुलेटेड, कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 रेंज ऑफ वैल्यूज लिख सकता हूँ मैं, है ना। आप इसी चीज को समझिए, दुनिया में और अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कठिन नहीं है, आपको सिर्फ ये समझ में आ जाए तो खेल है पूरा, है ना। सो f ऑफ टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वी कैन कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी ओनली फॉर सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। अगर सिग्मा इज लेस देन 0 हुआ, इक्वल टू 0 हुआ, तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इट विल नॉट बी द एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस यू शुड रिमेंबर। तो भैया आपका अब आपको ये समझ में आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू टी का तभी निकाला जा सकता है जब सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना।
निकाला जा सकता है ना, ठीक, चलो अच्छी बात है। तो अब हम निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो हम इसको एफ ऑफ एस ले लेते हैं, एफ ऑफ एस। तो हम ले लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एफ ऑफ टी क्या है आपका, यू ऑफ टी है ना, और ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी हम करते हैं जनरली। तो इसको हम सॉल्व किए तो क्या बनेगा, ये 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी है ना, और ये आपका बन गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ई टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस लिख लीजिए, 0 से इनफाइनाइट लिख लीजिए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/s ले लीजिए, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बाय माइनस ई टू द पावर 0 है ना, और ये वैल्यू हो गई आपकी ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटा 1/s। तो आप ये बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t विल बी इक्वल टू 1/s, 1/s, याद रखिएगा, सिर्फ 1/s मत बोलिए इसको आप बोलिए Laplace transform of ut is 1/s when sigma is greater than 0, when इसका इसका region of convergence क्या होगा, real part of s is greater than 0, ये कंडीशन मत भूलिएगा आप। अगर आप सिर्फ लिखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1/s, तो आप गलत करते हैं, क्योंकि क्या सिग्मा की हर वैल्यू पे ये 1/s शो करेगा, क्या नहीं करेगा, इट Laplace transform of u of t doesn't the value 1/s is not for every value of sigma, ये चीज को याद रखिए है ना, ये चीज को याद रखिए, क्योंकि इसी में तो बच्चे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ विल सी वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन ओनली। आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस टी। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है u ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे आप, चलिए देखते हैं। u ऑफ माइनस टी, कायदे से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है u ऑफ, पहले तो आपको एग्जिस्टेंस कंडीशन, यू नीड टू चेक एग्जिस्टेंस कंडीशन, तो आप एग्जिस्टेंस कंडीशन देख लीजिए, u ऑफ माइनस टी, ठीक है, e टू द पावर माइनस सिग्मा टी, ठीक है, और इसका अगर आप dt, अगर ये इनफाइनाइट हो गया तब तो आपका एग्जिस्टेंस कंडीशन आएगा। तो कब होगा, पहले तो हम इसको चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये कब आएगा देखते हैं। देखिए माइनस u ऑफ माइनस टी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0 ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी डी टी है ना। अब आप देखिए ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी का आप ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से 0 वैल्यू तक है, तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख दें तो ये कैसा वैल्यू हो जाएगा, इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगा है ना। तो आपका ये वैल्यू आपका ऐसा बढ़ता चला जाएगा। क्या ये हमको स्वीकार है, अरे ये वैल्यू तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ही नहीं है, ये तो नहीं कर सकते हम, है ना, तो ये इस कंडीशन को हम नॉट सेटिस्फाइड बोलते हैं। फिर हम सिग्मा की वैल्यू 0 रखते हैं, तो हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है 1 है ना, 1, ये 1 चला जाता है, दिस इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ये और सॉरी आप माइनस इनफाइनाइट से 0 है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ना सिर्फ यहाँ तक ही लेके चलते हैं, ऐसा है ना, ये वैल्यू ऐसे, तो ये तो आपका ठीक है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। उसके बाद हम आगे आते हैं, हम ये वाला वैल्यू भी आपका माइनस इनफाइनाइट से 0 तक हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0, तो आपका क्या होगा, ये वैल्यू पूरा माइनस इनफाइनाइट से वैल्यू आता चला जाएगा। ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है क्या, अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि नहीं सर, ये तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है ना। और तीसरा हम सिग्मा इज लेस देन 0 रख लें, सिग्मा इज लेस देन 0, तो हमारा क्या आएगा, सिग्मा इज लेस देन 0, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये ओके अच्छा, हमने ये शायद मिस्टेक कर दिया, 1 मिनट ना, ये सिग्नल ऐसा नहीं बनता, ओके सॉरी। ई टू द पावर जब सिग्मा बड़ा होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, तो डिक्रीज होगा तो ये कुछ ऐसा डिक्रीज होगा, ये कुछ ऐसा वैल्यू, और ये धीरे 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 0 हो चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, इसलिए इसको हम नहीं कर सकते। और ये सिग्मा इज लेस देन 0 अगर आता है, सिग्मा इज लेस देन 0 मतलब ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी में सिग्मा लेस देन 0, तो ई टू द पावर प्लस सिग्मा टी हो जाएगा, तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सिर्फ वी आर टेकिंग माइनस इनफाइनाइट टू 0 वैल्यू ओनली, लेकिन ये वैल्यू कहीं ना कहीं तो डिक्रीज हो रही है ना। तो अगर आप देखें तो वैल्यू एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो ये वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो u ऑफ माइनस टी
लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालना चाहें u ऑफ माइनस टी का, तो वो तभी निकाल सकते हैं फॉर सिग्मा इज लेस देन जीरो, तभी इसका पॉसिबल है। तो चलिए हम इसको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो देख लिया, अब निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट u ऑफ माइनस टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी हम करें तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस टी, है ना, ये है। तो इसको हम करें तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो कर लेते हैं ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, and this value is equal to e to the power minus st by minus of s minus infinite से 0, and this value can be written as minus 1 by s will be written as e to the power minus 0 minus e to the power minus of minus plus of यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस s आपका रहेगा ही, और यहाँ पे t की जगह माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो वी कैन सी माइनस वन बाय एस, वन माइनस ई टू दी पावर इनफाइनाइट एस आ जाएगा। और आपको पता है एस की वैल्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना, सिग्मा दिस विल नॉट कन्वर्ज एक्चुअली, सो सिग्मा फॉर सिग्मा इज लेस देन जीरो ओनली दिस विल कन्वर्ज, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय एस, है ना, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय एस, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय एस फॉर सिग्मा इज लेस देन जीरो। ये सिग्मा इज लेस देन जीरो के कंडीशन में, मतलब इसका जो आरओसी है, इसको अपन फॉर ना लिख के चलिए आरओसी लिख देते हैं, आरओसी इसका क्या होगा, सिग्मा इज लेस देन जीरो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन जीरो। तो आपको नाउ व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी क्या होता है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी क्या होता है, वन बाय एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ माइनस टी क्या होता है, माइनस वन बाय एस। तो आप इसमें एक प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं क्या कि टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, अगर आपका यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को आप समझिए, प्रॉपर्टी को समझिए कि अगर हम u ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो वी आर गेटिंग वन बाय एस, और अगर हम u ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं सो व्हाट वी आर गेटिंग माइनस वन बाय एस। आप समझ पा रहे हैं क्या, दोनों का आरओसी भी चेंज हो रहा है, इसका आरओसी क्या हो रहा है, सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, और इसका आरओसी क्या हो जा रहा है, सिग्मा इज लेस देन जीरो, ठीक है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट वही सिग्नल था u ऑफ टी, वही सिग्नल था, बस हम टाइम को रिवर्स कर दिए तो हमारा एक्सप्रेशन भी रिवर्स हो गया, पहली बात तो एक्सप्रेशन भी रिवर्स हो गया और आरओसी भी रिवर्स हो गया, दोनों पे इफेक्ट पड़ते। तो अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन आता है देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट आरओसी इज रिवर्स्ड एंड योर एक्सप्रेशन इज आल्सो रिवर्स्ड। अब मैं आपको एक और एक्सप्रेशन बताता हूँ, लेट्स सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस यू ऑफ माइनस टी, अगर आपको बोला जाए तो माइनस यू ऑफ माइनस टी अगर बोला जाता है तो जस्ट यू ऑफ माइनस टी तो आपको पता ही है, बस उसमें माइनस साइन लगाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यू ऑफ माइनस टी अगर आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस वन बाय एस, और इसका रियल पार्ट ऑफ एस विल बी लेस देन जीरो, है ना, इसका सिग्मा इज लेस देन जीरो। और अगर आप इसमें ये बोलते हैं माइनस u ऑफ माइनस टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड आप रिवर्सल करते हैं इसका लैप्लेस, तो ये माइनस आपका आ जाएगा इधर, तो ये प्लस वन बाय एस में हो जाएगा, लेकिन इसका आरओसी चेंज नहीं होगा, इसका आरओसी चेंज नहीं होगा, आरओसी तो वही रहेगा। आरओसी तब चेंज होता है, आरओसी विल बी चेंज व्हेन योर टाइम रिवर्सल विल बी हैपन, है ना, टाइम रिवर्सल। मैग्नीट्यूड रिवर्सल में कोई ऐसा चेंज नहीं आता, मैग्नीट्यूड रिवर्सल में सिर्फ एक्सप्रेशन में चेंज आता है, बाकी आपका आरओसी सेम रहता है। तो इससे हमको क्या सीख मिली, इससे हमको ये सीख मिली कि भैया आपका देखिए, इससे ये सीख मिली कि u ऑफ t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपका वन बाय एस है व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, और माइनस यू ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपका वन बाय एस है व्हेन सिग्मा इज लेस देन जीरो। आप यहाँ पे इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं क्या कि वन बाय एस और वन बाय एस दोनों का सेम है, जब हमने और दोनों अलग अलग टाइप के सिग्नल हैं, है ना, आरओसी भी दोनों। तो ये हमारा कंक्लूजन आया कि मोर देन वन सिग्नल, मोर देन वन सिग्नल can have same expression in Laplace transform, ठीक है।
बस अलग क्या करता है इन लोगों को, दोनों को अलग कौन किया भाई? आपको मैं बोलूं 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो तो आप u ऑफ टी भी निकाल सकते हो, इसका 1 माइनस u ऑफ माइनस टी भी निकाल सकते हो। अंतर कहाँ है दोनों में? अंतर कहाँ है दोनों में? तो अंतर सिर्फ आरओसी में अंतर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज ओनली यूनिक। ये यूनिक का यूनिक तो देखिए अभी आप देखेंगे तो यूनिक तो नहीं है 1/s, लेकिन यूनिक किस टर्म में है? सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा इज लेस देन जीरो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज ओनली यूनिक बाय बाय कंसीडरिंग कंसीडरिंग, ठीक है, इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC। ये वैल्यू आप, ये आप समझ गए तो आपको कोई चीज को समझने में उतनी देर नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था इसका, है ना? ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टुडे इन दिस टुडेज लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इज एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज एक्चुअली व्हाई वी हैव गॉन फ्रॉम फोरियर ट्रांसफॉर्म टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, and then what is actually Laplace transform, what is the special condition of calculating Fourier transform from Laplace transform, because Laplace transform is a general term, and then what is the existence condition for our Laplace transform, why when we can calculate Laplace transform for a signal, and then we have calculated Laplace transform for some standard signal like that of delta t, and then u of t, u of then time reversal u of minus t, magnitude reversal minus u of minus t, and then we can understood that Laplace transform is unique by considering only its ROC value. And what is ROC? I have told you in detail. So today's lecture will keep this much only. Next lecture, what will deal with what is S plane and what are the properties of S plane, what are the properties of Laplace transform, and then we'll go with addition of signals and what is the Laplace transform for that, and so much. So if you have liked this video, please hit the like button, share with the needy students, because this initiative from TechU faculties is free of cost. We are giving our time for this initiative. We are not we don't have any perspective of earning any bit of amount from this initiative. We have not monetized our channel, we have not earned, and we will not earn any single money from this initiative. This is only initiative for benefit of the engineering or graduating students. So do share it to more and more students, because this is India's first 100% free of cost GATE coaching classes. Not a single money is taken from you, and not a single money we will get from this. This is entirely transparent, and we are taking daily our time and for shooting this recording this lectures. So we are giving our 100%. Let's see if you are getting it, and if you are liking it, then please comment in the comment box, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it. So for today's lecture, this much only. We'll see in the next lecture. Tata, bye bye, see you, have a good day, Jai Hind.